Hello everyone, in this video we are going to cover our macroeconomics semester 4 unit 1 topic, which is our most important ISPCMR model or 3 equation model भी इसे कहते हैं. So it's the demanded video. Many of the students texted me and also I saw the comments on the YouTube videos that the students were saying कि please come up with this topic because this is quite important also. So I have come up with this video, so please share this video to your friends because it's going to be very informative, and I will share the information regarding this particular topic in a concise way, and only in 5 minutes I will cover this topic. So सबसे पहले IS क्या है. IS मतलब इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, PC मतलब फिलिप्स कर्व, MR मतलब मॉनेटरी रूल. तो आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये 3 मॉडल को समझा, मतलब ये एक मॉडल है जिसे हम 3 इक्वेशन मॉडल कहते हैं, इसे समझाने का. व्हाट विल यू डू देन? सबसे पहले देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग पे आते हैं. 1 बाय 1 सब पे चलेंगे और इसी तरीके से आपको सीक्वेंस रखना है. तो IS का आप कैसे यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे? सबसे पहले हमारा जो वाई होता है यानी आउटपुट GDP जो भी कहो वो क्या होता है? C+I+G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. सी को हम लिख सकते हैं C बार प्लस BY MPC और इनकम, ठीक है. आई को लिख सकते हैं I बार माइनस BR रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है. एंड G को हम ऐसे ही रखते हैं, NX को भी हम ऐसे ही रखते हैं. तो दीज थिंग्स, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, दीज 4 थिंग्स आर कंसिडर टू बी कॉन्स्टेंट. सो देयरफॉर आई एम टेकिंग इट लाइक A, ठीक है. इन सभी का सम मैं यहाँ पे A को एज्यूम कर रही हूँ, एंड इन दोनों के लिए आई एम यूजिंग माइनस स्मॉल AR, ठीक है. सो आई एम for this I am using this, okay. So let's ignore this for a while, ठीक है. So this will give our this equation. So at equilibrium level y equal to YE expected value of output and R equal to RS. RS means stabilizing interest rate, okay. So हमें ये equation मिली है. So if I put these values under this equation, what will we get? YE equal to A RS, ठीक है. This is equation 1, this is equation 2. So if we subtract 1 minus 2, then what will we get? Y minus YE. Then by subtracting this we'll get A minus AR minus A plus ARS. This will be cancel out, ठीक है. So we will be left with this, ठीक है. If I take this common R minus RS, then this will be this. This is the output fluctuation or output deviation. So the output deviation from the equilibrium level of output. So this is showing this expression is showing output deviation from equilibrium level of output, and this is showing the deviation from the stabilizing interest rate. The actual interest rate is deviating from the stabilizing interest rate. So to the point where the output will deviate from the equilibrium level of output, so it will extend up to the point when our actual interest rate will fluctuate with the stabilizing interest rate, ठीक है. And the A is showing the responsiveness that how much fluctuation is happening in the stabilizing interest rate, ठीक है. So ये चीज़ें हमारी ये चीज़ बता रही है, ओके. सो दिस इज दिस. इफ़ आई गो टू IS वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया. अब हम आते हैं PC पे. PC मतलब फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व आपको पता है, फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द आर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. एंड इफ़ आई गो फॉर द फिलिप्स कर्व इक्वेशन, देन व्हाट विल वी गेट? पाई इक्वल टू पाई pi t equal to pi t minus 1 plus alpha y minus YE, ठीक है. If we are taking E, then we can also take here E, ठीक है. So again write this equation. This will be like this, ठीक है. So this will be the rational expectation वाला augmented यानी expectation augmented Phillips curve, ठीक है. We are considering it here, okay. So this is like this. तो नाउ मूविंग टू द MR. तो MR मतलब मॉनेटरी रूल, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया. तो मॉनेटरी रूल के लिए जो इक्वेशन होती है सबसे पहले उसे समझते हैं. वो होता है y माइनस YE इक्वल टू माइनस B पाई माइनस पाई E, ठीक है. पाई टी, सॉरी, यहाँ पे हम कैपिटल टाइम पीरियड T ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं वो भी ग्राफ के जरिए हम समझेंगे, ठीक है. B मतलब रिस्पॉन्सिवनेस इन द चेंज इन द इन्फ्लेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और द सेंट्रल बैंक बिहेवियर व्हेन द इन्फ्लेशन चेंजेस, ठीक है. सो दैट विल बी ऑल्सो डिनोटिंग आर आउटपुट फ्लक्चुएशन लाइक are this IS curve, okay. So now coming to the curve काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर बना के आना है, ठीक है. तो ये है आपका इन्फ्लेशन, ये आपका आउटपुट, दिस इज आर ओरिजिन, ठीक है. इन द लॉन्ग रन वर्टिकल फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल एंड वर्टिकल फिलिप्स कर्व. सपोज दिस इज आर फिलिप्स कर्व विच इज शोइंग द इन्फ्लेशन रेट 2%, ठीक है. इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे हमारा 2% है, ओके. सो हेयर हमारा क्या मिलेगा हमें? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. द पॉइंट वेयर फिलिप्स कर्व एंड वर्टिकल फिलिप्स कर्व इंटरसेक्ट वी गेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. एंड ऑल्सो आर इन्फ्लेशन इज हमारी इनर्शिया इन्फ्लेशन के इक्वल होती है, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है.
क्योंकि अगर मैं ये क्यों होती है देखो, अगर मैं यहाँ पे y की जगह यहाँ पे वाई ई, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू वाई ई है, तो हम पाई इक्वल टू पाई यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे इसलिए यहाँ पर है, ठीक है। सो नाउ अब हमारा क्या हुआ, सपोज़ हमारे जो इन्फ्लेशन है, अभी हमारी इन्फ्लेशन एक शॉक आया, इन्फ्लेशन शॉक आया जिससे हमारी इन्फ्लेशन 6% की हो गई, बट आर टारगेट क्या है कि हम उसे 2% पे लाएँ, 2% पे लाएँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, हमारी एक्चुअल इन्फ्लेशन जो है वो इस पॉइंट पे है जहाँ पे पी सी पाई टी इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पाई टी क्या है, 6 है। अभी हमें यहाँ लानी है, 2 पे लानी है, तो हम क्या करेंगे, वट वी विल डू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ग्रेजुअल पॉलिसी का यूज़ करेंगे, हम धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, सपोज़ यहाँ पे हमने सबसे पहले करी, हम सबसे पहले इसको 5 पे लिया है, ठीक है, यानी 5 पे। अब यहाँ पे नया फिलिप्स कर्व बन जाएगा, पी सी इक्वल टू पाई टी इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को इस इन्फ्लेशन की आदत हो गई, तो हम दोबारा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा यहाँ लिया है, ठीक है। तो यानी कि अब हमने यहाँ कर दिया 4, तो यहाँ पे नया फिलिप्स कर्व मिला, पी सी पाई टी इक्वल टू 4। तो ऐसे करते करते हमारा ये धीरे धीरे करके यहाँ पे आता चला जाएगा। तो यानी कि जब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे मर्ज करूँगी, यहाँ पे ऐसे एक लाइन आपको मिलेगी, एंड दैट इज़ सिमिलर टू योर आई एस कर्व, ठीक है। तो ये होगी हमारी मॉनेटरी रूल लाइन, ठीक है। एंड ये हमारा पाई टी लेवल तक दिखाएगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे आ रहा था ना ये 6, तो हमारा ऐसे हो सकता है, हम 6 की जगह अगर कोई वैल्यू 6, तो हमने यहाँ वैल्यू ले लिया, अगर वैल्यू नहीं लेते तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, पाई टी इक्वल टू पाई की पावर कैपिटल टी। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल टी का यहाँ पे रेलेवेंस हुआ है।